Hello everyone. Welcome to this new session where I'll be discussing the most probable or common questions which might be asked in the APSC Combined Competitive Examination interview, which is most likely to be held in September or October. Although there were a few people who were saying that the interview might be held in August, but uske chances बहुत ज़्यादा कम हैं because the paper checking of mains actually takes time, and then final result, to declare final result before September, or I don't think that's a possibility. However, we don't know yet. We're not 100% sure कि कब होगा. हो सकता है लास्ट वीक ऑफ अगस्त में भी हो या फिर सितंबर अक्टूबर में हो, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड इज आवर agenda, right? Therefore I decided to make this video on a priority basis, because there are a few people who are actually now lost as to preparation शुरू कहाँ से करना है इंटरव्यू का. So I think I therefore decided to make this video so that it actually can provide you a guiding light as to कहाँ से शुरू करें, and it can provide you a direction to further develop your own kind of strategy for interview. Although interview में knowledge is important, your basic knowledge जो अभी तक आपने पढ़ाई की है उसका नॉलेज तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक वाले जो भी, एंड उसके अलावा करंट अफेयर्स इज समथिंग विच यू शुड कीप ऑन प्रायोरिटी. आई हैव टू अर्लियर ऑल्सो दैट वन न्यूज़पेपर हैज़ टू बी रेड थोरोली, एंड असम रिलेटेड न्यूज़ के लिए यू शुड ऑल्सो फॉलो न्यूज़पेपर लाइक असम ट्रिब्यून और एनी अदर सिमिलर न्यूज़पेपर इन एनी अदर लैंग्वेज जो कि आपको अच्छा रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे. नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस यहाँ पे जो भी प्रोबेबल है. It's not necessary कि ये पूछा जाएगा ही. It might be asked. These are the probable question as to ये common चीज़ें हैं जो पूछते हैं कई बार. मुझसे भी एक दो चीज़ें इसमें से पूछी गई हैं. You should be prepared कि भाई क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेके, ठीक है. एनीवेज nobody can predict कि क्या पूछ रहे हैं किसको, लेकिन हमारा काम है प्रिपरेशन करना जो हम कर रहे हैं, राइट. ऑल राइट. A language का issue as such, there is no issue in language in interview. You can talk in any language in which you are comfortable, so that's not a problem at all. Fine. Now my name is Ayushi Kalwar. I'm currently serving as an IRS officer. Last year in ACS I got rank 16. Okay. Now इसमें questions जो सबसे पहले हम देख रहे हैं, the first question which we're going to discuss is also one thing I would like to say that there are many people who actually waste time in speculation कि ये होगा तब होगा कब होगा पता नहीं. कमेंट भी करते हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा. इसको देख के बाकी लोग दे कम इन दे आर पैनिकिंग एंड दे आर इन टेंशन कि क्या होगा. सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट यू कीप योर प्रिपरेशन इंटैक्ट. बाकी लोग तो वैसे भी आई हैव नोटिस दिस दैट देर आर मेनी पीपल नॉट इन दिस प्लेटफॉर्म. इस प्लेटफॉर्म में प्रोबेबली देर आर क्वाइट सिंसियर पीपल, दे डोंट रियली डू दैट, बट बाकी प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे आई हैव सीन दैट पीपल एक्चुअली क्रिएट दिस काइंड ऑफ की मतलब एक बना के रखते हैं वैसा माहौल कि बाकी लोग ऐसे डर जाएं कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा. सो डोंट फॉलो दैट एंड डोंट लिसन टू एनी अदर पीपल. जो आपको करना है आपको करिए आराम से, जो होगा वो देखेंगे. ओके. All right, so the first question which we're going to discuss is very common question. Tell me something about yourself or introduce yourself. This is a very decent and a common way of starting the interview. Okay, so I can actually make this entire video in English, but it will not be fair to many people who actually are not very comfortable in English. It's not important that you know English. ये ज़रूरी है कि आपको एक लैंग्वेज पे अच्छी कमांड हो, ठीक है. कोई भी लैंग्वेज हो सकता है. यू शुड बी हैविंग अ गुड कमांड ओवर दैट लैंग्वेज. इंग्लिश हो तो अच्छा है, नहीं भी हो तो भी अच्छा है. इट्स ओके. देयरफॉर आई यूज़ अदर लैंग्वेजेस एज वेल, ओके, टू मेक दिस वीडियो इंक्लूसिव. ऑल राइट. नाउ अगर कोई शुरुआत कर रहा है इंटरव्यू का, तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन that someone says that tell me something about yourself or introduce yourself. Now here 3 things you have to keep in mind. First, the things which you must include. The first thing which comes in the list of must category is your name. Your full name should be told. You should not assume कि उनको मेरा नाम पता ही है. They are taking interview of lot of people, right? तो आप introduction में it's a decent way that you tell your name. ठीक है, you tell your full name. Then you tell your place, district from which you belong, then your educational background, and you can also mention your current job or whatever you're doing currently, like I've been preparing for the civil services or like that. Okay, so that's a decent way of introduction. You can include hobby,
ठीक है. Hobby you can include, like I in my free time I like to do this or that, something like that. I like to write poems, or I like to play chess, like that. ठीक है. Past work experience, if you have and if you want to share, if you've done some good work and आप चाहते हैं कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, तो यू शुड एक्चुअली मेंशन दैट. तो इंट्रोडक्शन में हम वैसी चीज़ें मेंशन करते हैं जो कि हम हाईलाइट करना चाहते हैं. तो ऑब्वियसली द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज दैट आप इंट्रोड्यूस जब अपने आप को करेंगे तो आपके स्ट्रेंथ्स को आप हाईलाइट करेंगे. ठीक है. जैसे कि अगर आप चाहते हैं आपसे से फुटबॉल पे क्वेश्चन पूछा जाए, मे बी they can ask. If somebody in the member in the panel is interested in football, they might ask you question related to football. So if you say that I like playing football, तो football related जो चीज़ें हैं, जो अभी current events हैं, कुछ चल रहा है, तो उससे related they might ask you. तो you should be prepared for that. Okay, तो that's one thing. And yes, बहुत सारी queries इसको भी लेके आए थे कि some degree you are pursuing now. ठीक, करेंटली वो परसुइंग से PhD और योर मास्टर्स, सो बट वो कंप्लीट नहीं हुआ है या कंप्लीट होने वाला है. शुड वी मेंशन दैट? नाउ दैट ऑल डिपेंड्स. Now suppose the subject on which you're doing your masters or PhD, you are comfortable in that subject, you want that सामने वाला आपके PhD या masters वाले subject से question पूछे, then you should mention that part in your introduction, that currently I am pursuing PhD in this, or I'm pursuing my master's degree from this university, and like that. Okay, you can mention that also. So that's a decent way of introduction. So to sum it up, see, ये आपका अपना होगा. You should know कि आप क्या बोलेंगे. और एक चीज़ जो यहाँ पे बताना था मुझे ये था कि you should have decent knowledge about things which you mention in the introduction, because introduction में आप कुछ बता रहे हैं, और स्पेशली अगर कुछ यूनिक चीज़ बता रहे हैं, तो इट्स वेरी लाइकली दैट वहाँ से आपको क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा जा सकता है. ओके, देयरफॉर यू शुड बी वेरी मच थॉरो विथ योर इंट्रोडक्शन कि क्या बोल के इंट्रोड्यूस करेंगे. इंट्रोडक्शन जनरली लास्ट करेगा 30-40 सेकेंड्स भी हो सकता है. इट शुड नॉट एक्सीड 1 मिनट. मतलब एक शॉर्ट एक ब्रीफ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बहुत लेंदी इंट्रोडक्शन है, बहुत ही क्रिस्प इंट्रोडक्शन होना चाहिए. इफ समवन आस्क्स मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन दिस फॉर्मेट, से आई से माई नेम इज XYZ, I belong to say Kamrup district of Assam. I have done my BTech from NIT Silchar. You can mention the year also. Currently I am working as an IRS officer. In my free time I like to play badminton, and I also write articles or poems. तो ऐसे करके you mention I write articles and poems in English, to be more specific. तो ऐसे specific चीज़ें आपको ऐसे डिटेल में बता, ऐसे नहीं कि I write. See, this I am explaining you that when I am saying that I write, I can write anything. तो सामने वालों को पता क्या चला? You should tell that yes, I write stories, I write poems, I write articles in English, in Bengali, in Assamese, in Hindi. It can be anything. Okay, you to mention that. So when I am mentioning that, I should be careful कि इससे next question पूछा जा सकता है. Suppose you write something in Assamese, you write poems in Assamese, so you should be aware of the famous poets in Assamese. तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी when you are introducing yourself. Okay, now moving on to the next question. Why do you want to join the civil services? Very common question. ठीक है. So here you can have your own answer. If you have your own answer, very good. अगर आपके पास ऐसा कुछ आंसर है जो कि एक्चुअली में आप जिस कारण ज्वाइन करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज को, यू कैन मेंशन दैट, प्रिपेयर दैट वेल, एक समराइज करके कि हाउ विल यू टेल दैट. दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, स्पेशली फ्रॉम फॉर द वंस हु आर नॉट फ्रॉम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड एंड दे आर फ्रॉम सी मेडिकल साइंस बैकग्राउंड और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड, सम तो लगता है कि भाई अच्छा ये MBBS करके वाई श्योर ही वॉन्ट्स टू कम हियर, और इंजीनियरिंग करके वाई श्योर ही इज़ हियर. तो इसमें ज़्यादा चांसेस हैं पूछने के. अदरवाइज भी यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ कि क्यों यू वाई यू वॉन्टेड टू जॉइन सिविल सर्विसेज. ओके, तो इसमें see, if you have your own reason, that's fine. If you don't have your own reason, you can say that the diversity of the work which civil services provides, that's very rare in other kind of profession. You can say that first. ठीक है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलता है, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग सेक्टर में यू कैन कंट्रीब्यूट, एंड दैट्स समथिंग विच इज़ नॉट देयर इन मेनी ऑफ द सर्विसेज. ठीक है, तो इंस्पायर्ड, यू हैव बीन इंस्पायर्ड बाय सिविल सर्वेंट्स वर्क समवेयर इन द पास्ट, यू हैव सीन व्हाइल ग्रोइंग अप, आपने देखा है किसी अफसर को काम करते हुए, so that actually motivated you to even or inspired you to prepare for this examination and do something as well. Or you can say that this profession provides a greater outreach
greater outreach with more opportunity and capacity. See, opportunity भी है, capacity भी है. You will have your resources at your disposal to do that work. करना सब चाहते हैं, ठीक है, but आप as a civil servant you will be provided with the resources and authority to do that. So you have more chances of doing that thing which you actually wanted to do. You getting it? तो outreach आपका ज़्यादा है. See, there can be number of reasons. I'm just explaining a few. You just brainstorm yourself. ये जो PDF है, I'll also share if you want, and इसी में you can actually note it down कि आपको क्या क्या और आपके क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, या फिर आप अपना भी नोट बना सकते हैं इसमें से क्वेश्चन आप निकाल के. सी, दिस आर ओनली 11 क्वेश्चंस आई एम गिविंग. देयर आर मेनी क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड. इफ आई फील दैट कुछ और भी क्वेश्चंस हैं तो आई विल मेक अनदर सेशन, बट दिस इज इट फॉर नाउ. और आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे आपने इंजीनियरिंग की है तो उसके स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं. अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ में से कोई सब्जेक्ट पे किया है तो उस पर क्वेश्चन हो सकता है फ्रॉम योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट. दिस आर द कॉमन क्वेश्चंस विच माइट बी आस्क्ड. थर्ड क्वेश्चन, what have you done since your graduation, post graduation? Are you unemployed since then? What I mean here is that कुछ लोगों ने पूछा भी था मुझसे कि बहुत बार ऐसे होता है कि हमने ग्रेजुएशन तो कर लिया है 4 साल 5 साल पहले, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तब से ऐसे ही हैं, ज़्यादा हमने ऐसे कुछ काम नहीं किया है. वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन और वी आर हियर इन दिस साइकिल ओनली, और तब से लेकर अब तक कुछ काम नहीं किया है. सो दैट does not leave a very good impression at first sight. So how to deal with that questions? So this is specific question for those kind of aspirants. Now here I'd like to tell you one thing. यहाँ पे उन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एक ये मेरा सजेशन है कि सी, इफ़ यू हैव नॉट डन समथिंग इन फॉर्मल सेटअप कहीं पे, बट आपने कुछ ऐसे इनफॉर्मली कहीं पे कुछ किया हो, ठीक है, सपोज यू हैव डन सम वर्क से इन टीचिंग प्रोफेशन, और कहीं और पे जाके आपने थोड़ी कुछ टाइम के लिए भी काम किया है, यू कैन मेंशन दैट. ठीक है, ट्राई टू मेंशन दैट येस सिंस देन आई हैव डन दिस, आई हैव टॉट इन दिस स्कूल और आई हैव टॉट द स्टूडेंट्स, ऐसे करके यू कैन मेंशन. और आई हैव डन सम वर्क विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके यू शुड मेंशन समथिंग, बिकॉज इट इज़ नॉट लीव अ गुड इंप्रेशन दैट यू हैव नॉट डन एनीथिंग. इसके अलावा you should add the point that I have been preparing for civil services for the last 2 years. I also if you have cracked any other examination in this time, you should mention that. अगर किसी का आपने recently एक stage पे clear किया है, that also you should mention, is what I personally feel, because that gives an impression that yes you have cleared an examination. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत random examination, लेकिन suppose those who are preparing for APSC, many people also prepare for UPSC, so you can tell that yes UPSC का मैंने ये लिखा. अगर if you have written your mains, then you can say that हाँ I have written mains. और इसको टैकल करने का एक और तरीका ये हो सकता है कि आप ये बोल सकते हैं कि आई हैड एक्चुअली नॉट, ये बोल सकते हैं ना वो कि यू हैव नॉट मेंशन एनी वर्क एक्सपीरियंस, तो यू कैन से दैट सिंस आई हैड वर्क फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड देन आई अगेन चेंज्ड my profession to another, and I changed my school or something like that, you can say, to another organization I moved. Therefore उतना कम duration का जो experience है I did not mention it there. Therefore since it was not continuous I did not mention it, you can say it like that. ठीक है, और लास्ट अगर 2 साल का गैप है, it does not make any difference. मतलब 2 साल का गैप is very normal. 3 years is also almost normal only. ठीक है, if you graduated in 2020, 21, 22 चला गया, that's fine, that's not a big deal. लेकिन अगर उससे भी पीछे है, से 2017 graduated है या 2016 है, 2015 है, तो उससे लेके अभी तक it does not make much sense when you say that you have not done anything last 5-6 years में. Therefore I'm saying something like that you can come up with. ठीक है, कि आपने ऐसे स्पोरेडिक ऐसे ओकेशंस पे आपने कुछ काम किया है, you can say that. And then I decided to full-fledgedly prepare for it, and for the last 2-3 years I'm preparing for it, and like that you can mention. Okay, तो इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक थिंग, बहुत ज़्यादा अगर है तो आप मुझे मेल करिए, आई जस्ट डिस्कस विथ यू कि क्या आप और बता सकते हैं. अगर एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा अगर गैप है या फिर आपने क्या किया है क्या नहीं उस पर, तो यू कैन मेल हियर. एक आई थिंक आई शेयर दिस माई ईमेल आईडी, ठीक है, उस पर you can mail apscmentor23@gmail.com and we can discuss further. Okay, because this is a very specific question, सबका अलग अलग होगा इस पे, ठीक है. Therefore I cannot give a generalized answer here, but yes this is a question which you should be prepared for, might be asked. अगर नोटिस हो जाता है और बहुत ज़्यादा गैप है तो पूछेंगे. 2-3 साल का गैप I don't think so they will ask much on that, but yes that's what it is. Moving to the fourth question, tell me something about your district. That's very basic question. district पे knowledge होना ज़रूरी है आपका. तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जाननी चाहिए. वो ये है कि
लाइक आसपास कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन से स्टेट्स हैं अगर बॉर्डर करता है कोई स्टेट, ठीक है, कौन सा कंट्री है अगर कोई कंट्री भी बॉर्डर करता है, तो दैट ऑल्सो यू कैन मैंशन. यू शुड मैंशन एंड यू शुड नो एक्चुअली, दे माइट डायरेक्टली आस्क यू. ठीक है. और कोई स्पेशल अगर एग्रीकल्चरल कमोडिटी है या फिर कुछ और भी कमोडिटी है, कुछ वहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो फेमस हैं, वहाँ पे कोई ट्राइबल कल्चर कुछ है फेमस, ठीक है, तो दोज आर द थिंग्स. कुछ ऐसे वीविंग वगैरह होता है, तो दोज आर द थिंग्स विच यू कैन मैंशन. ओके, देन यू हैव हाँ, इफ़ यू हैव गुड ग्रेट पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम देयर, या फिर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ या फ्रीडम फाइटर्स वहाँ के, दोज आर द थिंग्स विच यू शुड नो आपकी डिस्ट्रिक्ट के बारे में. बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक एरिया वगैरह, इफ स्पेसिफिक इतना थोड़ा बहुत जानने से चलता है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ने से भी चलेगा. कौन सा रिवर अगर फ्लो कर रहा है कोई इंपॉर्टेंट, दैट ऑल्सो यू शुड नो. ओके, मूविंग ऑन टू द 5th क्वेश्चन. Why should you be selected? That's a very valid question and very common question. बहुत बार स्टार्टिंग में पूछ लेंगे या फिर लास्ट में भी पूछ सकते हैं कि why should you be selected? There are so many people, no, but why only you? So इसमें I'll tell you the approach. You should actually tell the purpose of your joining the civil services, जो हमने पहले डिस्कस किया था. इसके साथ साथ you can mention that what you will add to the service, what values or attributes do you carry. आपके पास ऐसा क्या है, क्या वैल्यूज़ हैं आपके जो कि सिविल सर्विसेज में काम आएगा. ठीक है, तो सी आपने एथिक्स की पढ़ाई की है जो GS4 है. देयर यू हैव सीन दैट देयर आर अ फ्यू वैल्यूज़, कंपैशन, ऑनेस्टी, ठीक है, वो सब कुछ जो है कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन वगैरह, तो वो चीज़ें हैं विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन अ सिविल सर्वेंट. ठीक है, तो नॉन पार्टिसनशिप है, इम्पार्शलिटी है, तो try to link your attribute with that, or try to sort of, you can also summarize some incidents if you have. बहुत लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंसिडेंसेस भी होते हैं जिसने एक्चुअली उनको मोटिवेट किया सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए. दैट बिकेम योर रीज़न एंड दैट इन फैक्ट इज़ अ रीज़न दैट वाई यू शुड ऑल्सो बी सिलेक्टेड, वाई शुड यू बी यू एक्चुअली शुड बी सिलेक्टेड इन द सर्विसेज. ठीक है, तो वो एट्रीब्यूट के कंटेक्स्ट में ट्राई टू आंसर दैट, द वैल्यूज विच यू पॉजेस. ठीक है, तो उस हिसाब से यू फ्रेम दिस आंसर. ओके, इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. ओके, सो द नेक्स्ट 6th क्वेश्चन इज why is Northeast or Assam lacking in industrial development? What can be done? So this is a straightforward question. ये बहुत बार मेंस में पूछा जा चुका है, या फिर ऐसे भी आया था इस पे लास्ट टाइम कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए असम में या नॉर्थ ईस्ट में. तो ये उसके पर्सपेक्टिव से आई एम जस्ट गिविंग यू द क्वेश्चन बिकॉज उसमें दिस आर वेरी नॉर्मल क्वेश्चंस. ठीक है, आप इसको एक बार जो मेन पॉइंट है एक याद करके जाइए, चीज़ों को एक दिमाग में रहना चाहिए. वहाँ पे हो सकता है आपको याद ना आए, बट यू शुड नो दैट व्हाई इज़ इट दैट कंपेयर टू द अदर रीजन्स ऑफ द कंट्री थोड़ा सा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है. सो ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट की पूरा बात करें तो हिली रीजन है और वो सब इशूज़ तो हैं ही. देन देयर आर इशूज़ ऑफ द लैंड इशू, लैंड एक्विजिशन का इशू वैसे तो पूरे देश में है, बट यहाँ पे ट्राइबल लैंड एक्विजिशन बिकम्स मोर ऑफ अ चैलेंजिंग टास्क. ठीक है, वो सब तो है ही. द बेसिक थिंग्स से लेके जो मेजर चीज़ें हैं कि वाई पीपल डोंट वांट टू इन्वेस्ट. ठीक है, कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं, उसको कैसे रिजॉल्व करें कि लोग इन्वेस्ट करें आके यहाँ पे. दो ज़्यादा थिंग्स, 3-4 मेजर पॉइंट, दैट्स इट. यू डोंट हैव टू राइट 3 पेज का आंसर वहाँ पे, यू हैव टू जस्ट गिव 3-4 मेजर पॉइंट, दैट्स इट. ठीक है, और जो पॉइंट दे रहे हैं उस पर यू कैन ऑल्सो फ्रेम योर सोल्यूशन टू दैट. कनेक्टिविटी हो गया या फिर और भी कुछ, अगर जैसे एडवांटेज असम टाइप का जो प्रोग्राम करवाते हैं असम गवर्नमेंट, वैसे और होने चाहिए टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स. दो द थिंग्स विच यू कैन टेल. नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन. What are your views on NRC or Citizenship Act? Was the execution of the policy successful according to you? So यहाँ पे one thing that you should keep in your mind is that while you're expressing your views, ठीक है, it is necessarily not your views per se, but when you make your opinion, it should be backed by certain logical arguments. Okay, आपने ऐसे नहीं बोल दिया कि whatever your view this should be. आपको कॉमन इंसान जैसे बात नहीं करना, ना ही उनके साथ ऐसे जाके डिबेट करना है कुछ. Your opinion, any opinion based question should be very much balanced. ठीक है, एंड आपको जो सच है वही बताना है.
ठीक है. एंड ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट कि किस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ऐसे पॉलिसीज़ को लाया गया है. तो पर्पस ऑफ द पॉलिसी इज समथिंग विच यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल यू आर आंसरिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. देयर कैन बी अदर क्वेश्चंस एज वेल. ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट आर योर व्यूज़. तो द पर्पस ऑफ एनआरसी, उसमें आप असम एकॉर्ड का जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं वो बता सकते हैं, बिकॉज एनआरसी इज समथिंग विच वॉज लॉन्ग पेंडिंग, और अभी they have done it because there was the kind of demand coming from the people, and pending tha, and then Supreme Court also directed to do it, therefore they carried it out. Now, was the execution successful? That is something which is questionable. Obviously you cannot say it was successful, because to a largest extent there were certain errors in inclusion and exclusion. So you mentioned that, and what was done to resolve that issue. ठीक है, आप उस चीज़ को आप इलेबोरेट करके ट्राई टू ब्रिंग इट इन अ वेरी प्रोफेशनल एंड अ बैलेंस्ड वे. डोंट टेक एक्सट्रीम साइड्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ एंड व्हाई आई एम सेइंग इज दैट बिकॉज इसमें एक्सट्रीम कुछ भी नहीं है. एवरीथिंग हैज़ बोथ साइड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, आपको वो ध्यान में रखना है. यहाँ पे ऑल्दो यू हैव टू टेक एन ओपिनियन कि क्या करना है नहीं करना है, बट येस योर ओपिनियन शुड बी बेस्ड ऑन योर आर्ग्यूमेंट्स. यहाँ पे यू कैन से दैट येस आई बिलीव इन एनआरसी हुआ, अच्छा हुआ. यू कैन ऑल्सो से दैट नो, आई डोंट थिंक एनआरसी शुड हैव बीन डन. एनआरसी अच्छा नहीं है क्यों, या है क्यों. अगर आपको वैसे मजबूर किया जाए बोलने पे हाँ या ना बोलो, तो इट शुड बी बैक्ड बाय आर्ग्यूमेंट्स, इज व्हाट आई मीन टू से. ओके, आप ऐसे हवे में नहीं बोल सकते कि हाँ है या नहीं है. दैट विल नॉट साउंड गुड. ठीक है, आप है या नहीं है, बैक इट विथ सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स, दैट विल मेक योर आंसर बैलेंस्ड. उसमें बैलेंस का भी ऐसा कुछ नहीं है, बट येस योर आंसर शुड साउंड लॉजिकल. ठीक है, ऐसा लगना चाहिए कि एक नॉलेजेबल इंसान से बात हो रही है, एक इंसान से बात हुई हु इज़ एबल टू काइंड ऑफ सर्व द स्टेट, राइट. तो उस तरह से you have to put your arguments, आम आदमी जैसे वहाँ पे जाके you don't have to just say कि नहीं ये तो होना नहीं चाहिए. don't get emotional with anything कि होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए. just put your arguments कि अच्छा this is it, ये है इसलिए मुझे लगता है होना चाहिए, ये है इसलिए मुझे लगता है नहीं होना चाहिए. that's it, you have to put your argument that way. अब यहाँ पे I would like to tell one thing which is very important in interview is that you have to learn to make your answer very crisp and concise. ठीक है, ऐसे नहीं आप आउट ऑफ नो वेयर ऐसे हलवा जैसे बोल नहीं सकते वहाँ पे जाके. ठीक है, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट थिंग विच आई वाज टॉकिंग दैट अदर डे ऑल्सो, कि यू हैव टू सॉर्ट ऑफ टॉक इन ए फॉर्मल वे. ठीक है, चीज़ों को आप शुरू करिए, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो पता चलना चाहिए कि ठीक है आपका आंसर इज कमिंग टू एन एंड. प्रैक्टिस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, 8th question, what can be done to resolve the ethnic conflicts of Northeast? Now, what can be done? There can be many reasons, many ways which can be used to resolve the ethnic conflict. या फिर why does ethnic conflict take place in first place? ये भी आप इस पे आप थोड़ा सा you can brainstorm. I'm just giving you ideas. If you want to discuss, if you want me to discuss, I can take this discussion in the next session. But I want you to try this question yourself, and you can also comment your opinions below as to why ethnic conflict in Northeast, why so much of conflicts, and how can we resolve it, what can be done. ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच यू शुड ट्राई योर सेल्फ. और नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन भी है विच यू आर गोइंग टू ट्राई योर सेल्फ, एंड मैंने बस आपको लिख के एक आइडिया दिया है कि दिस आर द लाइन्स ऑन विच द क्वेश्चन माइट रिवॉल्व इन द इंटरव्यू. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 9th question is, what can be done to resolve the border issues among states in the Northeast region? Why I've picked up this question, because mostly border issues in Northeast में है वो असम के साथ हैं. ठीक है, therefore you should keep this question in mind. Why do you think Assam has border issues with multiple states? Why? There is a very common reason, एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है. इफ़ यू नो, कमेंट इट डाउन बिलो. और उसमें क्या है कि देयर इज़ अ हिस्टोरिकल रीज़न बिहाइंड इट, एंड क्या कर सकते हैं सो दैट वी कैन रिजॉल्व द बॉर्डर इशूज़. ठीक है, दिस इज अनदर क्वेश्चन विच आई हैव गिवन यू. And the other 2 questions are, the 10th question, if selected, what will be your priority areas to work on and why? Mention 3 such priorities which you will have when you are a civil servant. आप किन चीज़ों पे काम करना चाहेंगे? वैसे 3 एरियाज़ बताइए, कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्ज़ी. आपको क्या लगता है कि आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है? सो एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकता है,
इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है, दे कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए स्किल डेवलपमेंट हो सकता है। तो स्पेसिफिक चीज़ें कुछ हो सकती हैं जो आपका प्रायोरिटी है, जस्ट कीप दैट इन माइंड, यू शुड कीप ऑलवेज दैट इन माइंड दैट व्हाट यू वांट टू वर्क ऑन, ठीक है। व्हेन यू वांट टू बी एन सिविल सर्वेंट ऑफिसर, थिंक लाइक एन ऑफिसर, ठीक है। दैट थिंकिंग लाइक एन ऑफिसर विल हेल्प you here in the interview. Okay, try this question yourself. And whatever if you're commenting by chance in the below this video, just write the question number, ठीक है। उसके against आप बता सकते हैं कि what are your opinions, and maybe I'll see them and we can have a discussion there also, that's fine. और या फिर next session में we'll take up that also. Next question, the 11th question is how to resolve the issue of malnutrition in women and children of Assam. इनफैक्ट दैट वॉज द क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझे भी पूछा गया था विमेन पे, एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड वेरी वैलिड क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू असम, बिकॉज यहाँ पे एनीमिया का इशू भी बहुत ज़्यादा हो गया था विमेन में। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन विच यू शुड डेफिनेटली प्रिपेयर। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे G20 पे क्वेश्चंस हैं या फिर बाकी और भी क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, तो आपको करंट अफेयर से भी बहुत सारा आइडिया मिलता रहेगा कि आपको किस चीज़ पे प्रिपेयर करना चाहिए। ट्राई टू फॉर्म अ बैलेंस्ड एंड वैलिड ओपिनियन, बेसिकली a logical opinion and argument is something which which will help you to get that mark or good marks which you say, ठीक है। many people say that it's not really easy to predict कि इंटरव्यू में कितना मिलेगा, it depends on the board, the questions which is asked. I agree कि डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपने अपना if you're prepared to that level कि आप अच्छे से आंसर गए बोल के आए, तो देयर इज़ नो रीज़न दैट दिल डिडक्ट योर मार्क। हो सकता है कोई एक बोर्ड है जो 190 देता हो, दूसरा बोर्ड है 180 देता हो, उससे ज़्यादा कम नहीं देगा। अगर आपका अच्छा है इंटरव्यू में, आपने अच्छे से बोला है, 170 देगा। 170 भी तो इज़ अ गुड मार्क नो इन इंटरव्यू। So that's what I wanted to say. Okay, so if you keep it simple, things are going to work for you. Okay, last time when I gave my interview I was not sure as to क्या होगा क्या नहीं होगा, knowledge तो उतना ही था, but the point is that when you answer it in a logical way, when you give good arguments, you will see that the panel member are satisfied, they enjoy talking to you. I realized this last time, and I was also not expecting very good marks, लेकिन yes I got 187. Then I realized when I look back, in fact not only in APSC, in UPSC also, when I look back I saw that no, मुझे तो ऐसा नहीं था कि बहुत सब कुछ आता ही था। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे बिल्कुल नहीं आता था। I also told them that I don't know, or you can say I'm sorry, anything is fine. तो but the thing is that when you answer, जितना आंसर आपने दिया है सिंपल तरीके से बोल के आइए, that is going to work for you. I'm just sharing what I have experienced, okay? And one more thing, you can say I don't know in a few questions. You can also say I'm sorry. I'm sorry is a part of spoken English if we know, which means that I don't know in a more humble way. So अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आना चाहिए आपको लेकिन आपको नहीं आ रहा है, तो आई एम सॉरी एट्स दैट एक्स्ट्रा हम्बल दैट एक्स्ट्रा दैट पोलाइटनेस टू योर आंसर. सो दैट्स नॉट अ वे ऑफ सेइंग कि हाँ मुझे माफ़ कर दो, and a way of saying कि मैं तो झुक गई type. No, I am sorry is a decent way of saying I don't know. But हर question में I am sorry नहीं बोलने से भी चलेगा, say I don't know, I don't remember, ऐसे भी बोलेंगे तो भी चल जाएगा. So that's it from my side for this session. और अगर आगे और भी लगे कि इंटरव्यू पे और कुछ क्वेश्चन बनाने हैं या फिर अभी जो क्वेश्चन हमने डिस्कस मैंने किए नहीं, लास्ट के 3-4 क्वेश्चन जो आप कमेंट करेंगे उस पर भी वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, एंड इफ समथिंग एल्स कम्स अप वो भी एक साथ ले लेंगे हम. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मीन्स का रिजल्ट. आई होप दैट जितने लोग देख रहे हैं मैक्सिमम आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए एंड इसी बार हो जाए और आपको फिर से एग्ज़ाम ना लिखना पड़े. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट एंड फॉर योर इंटरव्यू एंड फॉर the other examinations which you might appear. Thank you so much.